آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ یروشلم کی مسجد کے بزرگ امام کو 3 سال قید کی سزا، اشتعال انگیزی کا الزام، اسرائیلی عدالت کا فیصلہ۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم کا دورہ ہندوستان، شریک حیات کے ساتھ بنگلور کی کافی شاپ میں آئے نظر۔ چیف منسٹر تلنگانہ کا عنقریب دورہ مہاراشٹرا، ممبئی میں ریونت ریڈی چلائیں گے انتخابی مہم۔ کمشنر ہائیڈرا کا دورہ بنگلور، تالابوں کی بحالی اور آفات سماوی سے نمٹنے کے انتظامات کا لیں گے جائزہ۔ اور محبوب نگر ڈی او رشوت لیتے ہوئے گرفتار، خاتون ٹیچر کی شکایت پر کارروائی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ یروشلم کی ایک مسجد کے معروف امام شیخ جمال مصطفیٰ کو اسرائیلی عدالت نے اپنے خطبے میں اشتعال انگیز بیان دینے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ امام شیخ جمال مصطفیٰ کو 15 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 70 سالہ امام کی گرفتاری مزاحمتی تحریکوں کی حمایت کے فلسطینی اظہار کے خلاف وسیع تر کریک ڈاؤن کا حصہ تھی۔ شیخ مصطفیٰ کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ میں ہونے والے واقعات کے بعد اس طرح کے الزامات میں یروشلم میں مساجد کے دیگر 2 امام صاحبان کو بھی جیل بھیج دیا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی میڈیکل ٹیم کا استقبال کیا، جس نے 6 نومبر کو ریاض میں ان کے دفتر میں دنیا کا پہلا مکمل روبوٹک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کامیابی سے کیا۔ ٹرانسپلانٹ ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر میں کیا گیا۔ معروف سعودی کارڈیاک سرجن ڈاکٹر فیرس خلیل کی سربراہی میں ٹرانسپلانٹ کے طریقہ کار کو ہفتوں کی محتاط تیاری کے بعد 2.5 گھنٹے درکار ہوئے۔ استقبالیہ کے دوران ولی عہد نے سعودی میڈیکل ٹیم اور KFSHRC رہنماؤں کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی، ان کی اختراعات اور عالمی صحت کو بڑھانے میں شراکت داری کی تعریف کی۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ اجیت پوار نے جمعرات کو شیواجی نگر سے پارٹی امیدوار نواب ملک اور انوشکتی نگر سے ثنا ملک کے لیے مہم چلائی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مہاوتی اتحادی جماعتوں بشمول شیو سینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے نواب ملک کی امیدواری کی مخالفت کی ہے۔ دونوں جماعتوں نے ان کے لیے مہم چلانے سے انکار کر دیا۔ اجیت پوار نے مضبوط عوامی جوش و جذبے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی پارٹی کے امکانات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پوار نے اس بات پر زور دیا کہ جامع ترقی مذہب یا ذات سے قطع نظر مہاراشٹر کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ہندوستانی نژاد برطانوی سابق وزیر اعظم رشی سوناک اپنی اہلیہ اکشتا مورتی کے ساتھ بنگلور کی ایک کافی شاپ میں نظر آئے۔ جنوبی بنگلور کی ایک کافی شاپ میں وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کافی پیتے دیکھے گئے، جسے دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ رشی سوناک اور اکشتا نے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بھی لی اور کچھ وقت تقریری انداز میں گزارا۔ حال ہی میں رشی سوناک بھارت کے دورے پر بنگلور پہنچے ہیں اور وہ جہانگیر نگر علاقے میں اپنے سسرالی گھر میں مقیم ہیں۔ بالی ووڈ کے مشہور و معروف اداکار شاہ رخ خان کو 50 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ ممبئی پولیس نے بتایا کہ ایک نامعلوم شخص نے شاہ رخ خان کو دھمکی آمیز کال کیا۔ باندرا پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ نامعلوم شخص کے خلاف بھارتی قانون کے متعدد دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ یہ دھمکی چھتیس گڑھ کے شہر رائے پور سے براہ راست ممبئی پولیس کو دی گئی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ دھمکی دینے والا شخص فیضان نامی نوجوان ہے۔ شاہ رخ خان کو ماضی میں اکتوبر کے مہینے میں بھی دھمکی آمیز فون کالز موصول ہوئے تھے۔ ان دھمکیوں کا سلسلہ ان کی فلمیں پٹھان اور جوان کی کامیابی کے بعد شروع ہوا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جلد ہی مہاراشٹر میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر ممبئی کے ان حلقوں کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جہاں بڑی تعداد میں تیلگو زبان بولنے والے افراد رہتے ہیں۔ AICC نے پہلے ہی مہاراشٹر کے انتخابات کے سلسلے میں اسٹار کمپینرز کی فہرست میں ریونت ریڈی کے نام کا اعلان کیا ہے۔
बताया जाता है कि मुंबई कांग्रेस कमेटी ने इनकी इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार कर लिया है। रेवंत रेड्डी वहां कम से कम 2 दिन क़याम करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुहिम चलाएंगे। महाराष्ट्र के 16 असेंबली हलकों में तेलुगु अवाम की अक्सरियत है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को 55 बरस के हो जाएंगे। इनकी सालगिरह के मौके पर उड़ीसा के पुरी में साहिल समंदर पर इनकी तस्वीर बनाते हुए उनको मुबारकबाद पेश की गई। इस साहिल पर वजीर आला की तस्वीर बनाने के लिए सैंड आर्टिस्ट की खिदमत हासिल की गई। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम साई कुमार ने चीफ मिनिस्टर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर को मुबारकबादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये वायरल हो गई। इस तरह साई कुमार ने चीफ मिनिस्टर को सालगिरह का अनोखा तोहफा दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जात से मुताल्लिक बीजेपी फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी की जानिब से उठाए गए सवाल पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने मीडिया के लिए जारी अपने एक वीडियो पैगाम में बीजेपी लीडर को मशवरा दिया कि मोदी हुकूमत पर 2025 की कौमी सतह की मर्दमशुमारी में जात पात की मर्दमशुमारी करवाने के लिए दबाव डालें। उस वक्त ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी किस जात से ताल्लुक रखते हैं। నాయకుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి రోజుకి ఏం మాట్లాడుతుండో అర్థం కాకుండా పోతా ఉంది. మీరు కులగణన గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక బీసీ అయిన బండి సంజయ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉంటే అది కూడా పీకేసి అగ్రవర్ణాలు తెచ్చుకున్నారు. బీజేఎల్పీ నాయకుడు అగ్రవర్ణాల వారే, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అగ్రవర్ణాల వారే. మీరు కులగణనకు మేము అనుకూలమని మాట్లాడతారు. రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అంటా ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారు జాతీయ మొత్తము అభిమానించే నాయకుడు. కులగణన ఎందుకు అడుగుతా ఉన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు? ఎవరు కులం ఏంటో తెలుస్తుందని కులగణన అడుగుతా ఉన్నారు. కులగణన సంపూర్ణంగా జరిగిన తర్వాత ఈ దేశంలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రాష్ట్ర నాయకత్వం మోడీ గారిని అడగండి. 2025లో జరిగే జనగణనలో ఓబీసీల యొక్క అంశం కూడా చేర్చమని అడగండి. మీరు అప్పుడు తెలుస్తుంది రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ కులం అని. మీరు కులగణన గురించి మాట్లాడడం ఏమిటి? రాష్ట్రంలో గాని దేశంలో గాని కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలహీన వర్గాల మీద ఒక तेलंगाना में जुमेरात को 9 डीएसपीज के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। डीजीपी जितेंद्र की तरफ से जारी किए गए अहकाम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर डीएसपीज को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मौजूदा जगतियाल डीएसपी डीसीआरबी के ओहदे पर तैनात जी महेश बाबू को करीमनगर डीएसपी पीटीसी के तौर पर तैनात किया गया है। इसी तरह करीमनगर डीएसपी पीटीसी पर तैनात बी रामानुजन को कागजनगर एसपी के तौर पर तबादला किया गया है। कागजनगर के एसपीओ के ओहदे पर तैनात ए किरण करण को आसिफाबाद एलडीपीओ के तौर पर तबादला किया गया है। वनपर्ती डीएसपी डीसीआरबी के ओहदे पर मौजूद के कृष्णा किशन को तुर्रूर महबूब आबाद एसपीओ के तौर पर मुकर्रर किया गया है, जबकि नीरमल डीएसपी डीएसआरबी पर मौजूद पी रविंद्र रेड्डी को खम्मम एसीबी सीबीआरपी के तौर पर भेजा गया है। इसी तरह दीगर ओहदेदारान भी शामिल हैं। हैड्रा के कमिश्नर रंगनाथ बेंगलुरु पहुंच गए हैं, जहां वो 2 रोज़ा दौरे के दौरान बेंगलुरु शहर में तालाबों की बहाली के मंसूबे पर मुतालिया करेंगे। हैड्रा के दीगर ओहदेदार चारशंबे के रोज ही बेंगलुरु पहुंच गए थे, जबकि रंगनाथ जुमेरात को रवाना हुए। इस दौरे में हैड्रा की टीम तालाबों की बहाली के साथ साथ आफत समावी से निपटने के इक़दाम का भी जायजा लेगी। इस दौरान हैड्रा के ओहदेदार बेंगलुरु के यलहंका इलाके में वाक़ कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिज़ास्टर मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा करेंगे और वहां के सीनियर साइंसदानों के साथ आफत समावी से निपटने पर तबादले ख्याल करेंगे। इसके बाद वो सेंटर से निकलने वाले गंदे पानी के निज़ाम का भी मुआयना करेंगे, जिसकी निगरानी सेंसर्स के जरिए की जाती है, और बेंगलुरु के शहर के मरकजी हिस्से में मौजूद तालाबों का भी दौरा करेंगे। नॉर्मल एरियाज में that is urban setting and also the changing climatic pattern also. And heat islands, sir, urban heat islands. మనకు ఒక ప్లేస్ లో 3 degrees వేరియేషన్ ఉంటుంది సార్. పక్కల ప్లేస్ కి దానికి ఎందుకంటే 3 degrees నుంచి urban area, urban heat islands అని ఏమంటాము. సో నేను as I said ఈ గ్లాస్ బిల్డింగ్ అయిన దగ్గర హీట్ ట్రాప్ అవుతుంది.
పక్కన ఏరియాకి దీనికి మినిమం 3 degrees వేరియేషన్ కూడా ఉన్న రోజు చూసాం సార్. సో టెంపరేచర్స్ ఆల్సో మెజరింగ్ ఇన్ ద సిటీ విత్ ఇన్ ద సిటీ లిమిట్స్ విత్ హై డెన్సిటీ. అంటే ఇప్పుడు హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ ఏరియాస్లో యూ టెన్ టు హ్యావ్ more temperatures, మోర్ టెంపరేచర్స్. which leads to the sheltering conditions, people health issues and high downpour because of the pressure variations in the atmosphere. దాని మీద ఏమన్నా ఉందా మన దగ్గర? అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ స్టడీస్ ఉన్నాయి సార్. అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్స్. We will see it, sir. So briefly this is about, sir, and there is seismic also which has kept. मूसा नदी में नई जान डालने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले बावकार प्रोजेक्ट पर अपोजिशन जमातों की जानिब से अवाम में पैदा किए जाने वाले खदशात को रद्द करने के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 नवंबर को पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा इनकी सालगिरह के मौके पर की जाएगी। चीफ मिनिस्टर भुवनगिर के वलीगोंडा बीबी नगर के दरमियान 6 किलोमीटर तक बहने वाली मूसा नदी की आलूदगी की सूरत हाल की तफसीलात से अवाम को वाकिफ करवाएंगे। हुकूमत पहले मरहले में 21 किलोमीटर तक मूसा नदी को तरक्की देने का मंसूबा रखती है। हालत नशा में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए अफराद को अदालत ने हॉस्पिटल में सफाई का काम करने की अनोखी सजा सुनाई। तेलंगाना के मंचिरियाल जिला मुस्तकिर में हाल ही में पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए 27 अफराद को पकड़ लिया था। पुलिस ने इन तमाम को अदालत में पेश किया। अदालत ने पकड़े गए तमाम अफराद को 1 हफ्ते के लिए मुकाबी मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में सफाई का काम करने की अनोखी सजा सुनाई। రామమండం కమిషనరేట్ సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం ఉత్తర్వు ప్రకారం డీసీపీ గారు భాస్కర్ సారు ఉద్దేశ ప్రకారం ట్రాఫిక్ సిఐ గారు ఆధ్వర్యంలో మంచిర్యాల ట్రాఫిక్ సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో నిన్న 27 మంది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ దొరికిన క్యాండిడేట్ ను కోర్టుకు ఫస్ట్ క్లాస్ అడిషనల్ కోర్టుకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే జూనియర్ జడ్జి మేడం గారు 27 మందికి వాళ్ళకు ఒక 1 వీక్ పనిష్మెంట్ కింద వారం రోజులు శుభ్రత గురించి మాతా శిశు సంక్షేమ హాస్పిటల్కు వారం రోజుల గురించి పనిష్మెంట్ గా పంపించింది. అందులో భాగంగా ఈ రోజు హాస్పిటల్కి వచ్చి వారి పనిష్మెంట్ 27 మందికి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ చేపించడానికి మేము వచ్చి ఇక్కడ చేపిస్తున్నాం పై అధికారుల ఉద్దేశ ప్రకారం. ఇది ఈ యొక్క విషయం ప్రజలు ఇలాంటి తప్పు చేయకుండా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ రోడ్ల మీద తిరగకుండా ఒక జాగ్రత్త పడుతూ ఇంకో తప్పు చేస్తే ఇంకో వేరే వాళ్ళ ఎదుటి వ్యక్తితో ప్రాబ్లం కావచ్చు, వాళ్ళతో ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఇట్లా పిల్లలతో ప్రాబ్లం అయింది. అలాంటి తప్పు వేరే వాళ్ళు చేయకుండా మోటివేషన్ గురించి వీళ్ళందరూ ప్రజలు తెలుసుకొని ఇలాంటి తప్పు చేసి తాగి రోడ్ల మీద తిరగకుండా మా యొక్క ఉద్దేశం మాకు పోలీసుగా దొరకకూడదు ఉండదు. తాగితే ఏదైనా ఉంటే ఇంట్లోగా చూసుకోవాలి, తాగి రోడ్ల మీద పైకి రావద్దని మా యొక్క ఉద్దేశం. అందులో బాగానే తనిఖీ చేసి కోర్టుకు కోర్టు వారు ఈ పనిష్మెంట్ పంపి హాస్పిటల్ క్లీనింగ్ గురించి హాస్పిటల్ పంపించారు. ఇంకో తప్పు ప్రజలు ఇలాంటి తప్పు వేరే చేయకుండా గమనించగలరని నా ఒక మనవి చేస్తున్నాను. मंचिरियाल जिले के साईकुंटा इलाके में वाक़ ट्राइबल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में 10वीं जमात की 12 तालिबात खराबी सेहत से मुतासिर हो गए। स्कूल की 160 तालिबात ने सुबह खिचड़ी खाई, जिसके बाद 12 तालिबात ने पेट दर्द की शिकायत की। इनको फौरी तौर पर मंचिरियाल के सरकारी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कलेक्टर कुमार दीपक ने हॉस्पिटल पहुंचकर तालिबात की इयादत की। उन्होंने कहा कि इन्हें खुसूसी तिब्बी माहिरीन की निगरानी में बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंदर को जुमेरात के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने खातून टीचर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक खातून टीचर ने अपनी सीनियरिटी को यकीनी बनाने के लिए कई बार डीओ से दरख्वास्त की थी। ताहम डीओ रविंदर ने इस मामले में इंसाफ फराहम करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत तलब की। इस पर खातून टीचर ने अपने शौहर के साथ मिलकर एसीबी डीएसपी कृष्णा गौड़ से राब्ता कायम किया। एसीबी अहदेदारों की हिदायत पर जुमेरात की सुबह खातून टीचर ने महबूब नगर के श्रीनिवास कॉलोनी में वाक़े डीओ रविंदर के घर पहुंचकर उसे 50,000 रुपये अदा किए। इसी दौरान पुलिस ने धावा करके उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरटीसी बस के ट्रैक्टर से टकरा जाने के हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए।
यह हादसा तेलंगाना के जगत्याल कोरटला टाउन के पुराने बस स्टैंड के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस सफाई वर्कर्स के ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में बस के सामने के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हैदराबाद में एक और क्लॉक टावर की नकाबकुशाई होने जा रही है। ओहदेदारों ने आजमपुरा में एक नए क्लॉक टावर की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। टावर के अतराफ रोशनियों को घास, दरख्तों और पौधों से दिलकश अंदाज में सजाया जाएगा ताकि टावर को सरसब्ज और शादाब बनाया जा सके। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में बास फाइल्स का भी जायजा लिया। मुकदमात की पेशरफ ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात के सिलसिले में उन्होंने तफसीलात तलब की। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी कि पुलिस स्टेशन में भी शिकायत के लिए आने वालों के साथ बेहतर रवैया इख्तियार किया जाए। शहर हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में फूड सेफ्टी के अहदेदारों की टीमों ने बाज़ होटल्स पर छापा मारा। इस छापे के दौरान एक होटल में सड़ी हुई सब्जियां पाई गईं। होटलों के बावर्ची खानों में हिफ्ज़ान सेहत के मयारात को बरकरार नहीं रखे जाने और नाक़िस साफ़ सफाई के इंतज़ामात पर अहदेदारों ने वहाँ के नमूने हासिल किए। बाज़ होटल्स के बावर्ची खानों में झिंगुर भी देखे गए। होटलों में ग़िज़ाई नमूनों को हासिल कर लिया गया जो लैब को भेजे जाएंगे। इन अहदेदारों ने फूड सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। यरूशलेम की मस्जिद के बुजुर्ग इमाम को 3 साल कैद की सजा, इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम, इजरायली अदालत का फैसला। बरतानिया के साबिक वजीर आजम का दौरा हिंदुस्तान, शरीक हयात के साथ बेंगलुरु की कॉफी शॉप में आए नजर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का अनकरीब दौरा महाराष्ट्र, मुंबई में रेवंत रेड्डी चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। कमिश्नर हाइड्रा का दौरा बेंगलुरु, तालाबों की बहाली और आफात समावी से निमटने के इंतजामात का लेंगे जायजा। और महबूब नगर डीओ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, खातून टीचर की शिकायत पर कार्रवाई। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।